Good morning, students. How are you? Okay. It is history period, chapter 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. Topic is workers and peasants of Russia. The workers were divided in different social groups. Some of them had strong links with their ancestral villages. In this topic, we shall study about the position of workers of Russia and peasants. The workers were divided into different social groups. At the time of Russian Revolution, the workers were divided in different social groups, means रशियन रिवोल्यूशन के पहले रसिया के वर्कर्स अनेक सामाजिक समूहों में बटे हुए थे, जिसमें से कुछ लोग जो थे वह अपने पैतृक गांव से संबंधित थे, यानी अपने पैतृक गांव में रहकर के ही काम करते थे. Some others had permanently settled in cities. Some of them, means some workers, completely live in cities for their living. It means where they working in the factories and industries, they lived there permanently with their families. Workers were divided by skill and metal workers. The workers of Russia at that time divided into skilled labor and non-skilled labor, means skilled workers and non-skilled workers. The workers, those have capacity to do their work skillfully, known as skilled worker, and the workers, those were not skilled, but they help the skilled workers, known as unskilled workers, and also metal workers. The workers, those done metal works, means their work was related with metals, known as metal workers. Workers' dress and manners also manifested such divisions. वर्कर्स का जो ड्रेस होता था, वर्कर्स ड्रेस एंड मैनर्स आल्सो मैनिफेस्टेड सच डिविजन्स. वर्कर्स का जो ड्रेस था और उनके रहने का ढंग, यह सब निश्चित किया गया था. किस तरह का उनका ड्रेस होगा और उनका मैनर किस तरह से होगा, यह सब डिसाइड किया गया था. इन स्पाइट ऑफ डिविजन्स, द वर्कर्स ऑफन यूनाइटेड टू स्ट्राइक वर्क whenever they
was some issue related to dismissal or working condition. You know that the workers of Russia divided into different social groups: unskilled workers, skilled workers, metal workers. Few workers lived in their ancestral villages and some workers lived permanently, means they settled permanently in cities. But in spite of all divisions, इन इतने वर्गों में डिवाइड थे वो, बट व्हेन दे नीड्स at the time of any issue like dismissal or working condition, they were united for strike. इतने डिवीज़न होने के बाद भी जब कभी कोई मुद्दा किसी वर्कर को निकालने का यानी बर्खास्त करने का या उनके वर्किंग कंडीशन के लिए कोई मुद्दा होता था, तो इन सब इशू पर, इन सब मुद्दों पर सभी वर्कर्स एक साथ मिल करके स्ट्राइक करते थे. इन स्पाइट ऑफ डिविजन्स द वर्कर्स ऑफन यूनाइटेड टू स्ट्राइक वर्क व्हेनेवर there was some issue related to dismissal, means बर्खास्तगी, और वर्किंग कंडीशन, कार्य की दशाएं. जैसे वर्कर्स जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशन क्या है, अच्छी कंडीशन में काम कर रहे हैं या कंडीशन ठीक नहीं है. इस तरह से वर्कर्स वर्किंग कंडीशन और डिसमिसल के इशूज़ पर यूनाइट होकर के एक साथ हड़ताल, तालाबंदी जो भी करना होता था एक दूसरे वर्कर के सपोर्टर में वो करते थे. मीन्स जो उनका डिवीज़न था उसका उनकी एकता पर कोई असर नहीं था. इस तरह से वर्कर्स यूनाइट होकर के किसी भी इशू पर विरोध करते थे और हड़ताल या तालाबंदी आदि भी समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर करते रहते थे. इस तरह से वर्कर्स जो थे वहाँ के, वह अनेक सामाजिक ग्रुप, कुशल वर्कर मीन्स skilled workers, unskilled workers, and the workers those who were doing metal work known as metal workers. All these are the condition and division of workers of Russia at that time. Now we shall study about the peasants of Russia. किसान कैसे थे वहाँ पर, किस तरह से वो अपना खेती बाड़ी, अपना जीवन यापन करते थे, इन सब का स्टडी हम इसमें करेंगे. इन विलेजेस द peasants cultivated most of the land, but large properties were owned by the nobility, the crown, and the Orthodox Church. As you study in previous chapter, French Revolution, that whole society was divided in three groups. Whole society was divided in three groups. जो
वो होते थे मिशनरीज होती थी, मीन्स चर्चेज, फादर जो होता था, दूसरा नोबल्स एंड तीसरा कॉमन पीपल। ठीक उसी तरह से रसिया में भी वहाँ पर लार्ज प्रॉपर्टीज़ जो होती थी वह नोबिलिटी, क्राउन मीन्स किंग के अंडर में, या ऑर्थोडॉक्स चर्च वहाँ का जो फादर होता था चर्च का उसके कब्जे में होती थी। नोबल्स, क्राउन एंड चर्चेज जो होती थी वहाँ पर, इस तरह से जो लार्ज प्रॉपर्टी होती थी वह इनके अंडर में होता था। बेयरिंग ए फ्यू एक्सेप्टेशंस, bearing a few expectations, the peasants had no respect for the nobility। जो पीजेंट्स होते थे उनको तमाम आशाएं होती थी कि कुछ उनके लिए नोबल्स, क्राउन या चर्च का जो फादर होता था वो कुछ करे, लेकिन इन लोगों के अंदर पीजेंट के लिए कोई भी सम्मान नहीं था। नोबल्स एंजॉयड देयर पावर एंड पोजीशन बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज टू द सार। क्योंकि नोबल्स जो होते थे वह किंग के प्रति वफादार होते थे। एट दैट टाइम द सार रेजिम was ruling in Russia and the last ruler of Tsar regime was Nicholas II। चूँकि किंग के प्रति वफादार होते थे इसलिए इनको अधिकार मिला हुआ था और अपने पावर पोजीशन को एंजॉय करते थे। पीजेंट्स कितना भी परेशान रहें लेकिन इन लोगों से कोई मतलब नहीं होता था। द पीजेंट्स ऑफ रसिया वांटेड द लैंड्स ऑफ नोबल्स। द पीजेंट्स ऑफ रसिया वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स। जो वहाँ के पीजेंट होते थे क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी खेती करने के लिए, परिवार होता था उनका खर्चा चलाने के लिए, इस तरह से वो जो है नोबल्स के पास जो प्रॉपर्टी, जो लैंड ज़्यादा होती थी उसको चाहते थे कि इन्हें मिल जाए। दे ऑफन रिफ्यूज टू पे रेंट। दे ऑफन रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स। The peasants often refused to pay rent, taxes, land taxes. Whenever there was high tension, more problem about paying the rent, they murdered the landlords। तो पीजेंट थे वहाँ के रसिया के, वह जब टैक्स देने या लैंड का रेंट देने के लिए मना कर दें, पेमेंट न करते थे, तो लैंडलॉर्ड और पीजेंट के बीच में टेंशन पैदा हो जाता था, प्रॉब्लम आ जाती थी। इसलिए कभी कभी लड़ाई झगड़े में पीजेंट लैंडलॉर्ड का भी मर्डर कर देते थे। Their commune that was called Mir divided the land according to the needs of individual family. Thus they had a long tradition of working in close association। commune, community, एक एरिया की जो कम्युनिटी होती थी, एक गांव की जो कम्युनिटी होती थी, वह पूरी लैंड को फैमिली वाइज, किस फैमिली में कितने
मेंबर हैं उसके हिसाब से ज़मीन का बंटवारा कर दिया जाता था और इस तरह से जिसके परिवार में ज़्यादा मेंबर होते थे उसको ज़्यादा ज़मीन मिलती थी और जिसके पास कम परिवार होते थे उसको कम ज़मीन मिलती थी। दे हैड ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन। इस तरह से उनकी एक लंबी पुरानी परंपरा बन गई थी कि वह एक दूसरे के साथ मिल कर के काम करते थे, आपस में समझ करके किसको कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से गांव की या किसी एरिया की ज़मीन बांट दी जाती थी और किसान अपना खेती करते थे। इस तरह से रसिया में बहुत लंबी पारंपरिक व्यवस्था थी है कि लोग साथ मिल करके आपस में समझ करके काम करते थे। इन दिस वे योर क्लास इज ओवर। थैंक यू।